Very good morning to all of you. I think so. My screen is visible to you. Yes, sir. Uh, Sound is clear, huh? So today we are going to start your uh, new unit, and this unit is last unit, and we will try as more as possible today. Unit number 5 is related to the social issues and the environmental education. So in that you can see the articles 48A and Article 51A of Indian Constitution regarding the environment. Also, you can see Environmental Protection and Prevention Act, CPCB norms, MPCB norms and responsibilities, and also role of NGOs. Then concept of sustainable development, EIA, environmental assessment, and then environmental morality. So this is the today's unit outcome is 5A, 5B, and 5C. You can see today, and course outcome is the last one, that is COE, has managed the social issues and the environmental ethics. Uh, as a lifelong learning. So today we will see the fundamental rights of citizens about the environment and the government legislations on the environmental protection, that is Article 48A and 51A of the Indian Constitution regarding the environment. Okay. So Article 48A and 51A of Indian Constitution. Also, we will see simultaneously the Environmental Protection and the Prevention Act, CPCB and MPCB norms and responsibility role of NGOs. So first of all, this you can see here the fundamental duties of the environmental protection, responsibilities of the states in the country, legislations, laws and rules and act, regulatory bodies, and there are different NGOs. They are working over the environment, and fundamental duties it will come to the citizens of the country. We will come first to the understanding the fundamental duties of the citizen toward the environment protection. So here you can see the Article 51A of G says that it shall be a duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. The directive principles under the Indian constitutions. So here you can see that uh, the Article 51A of the Indian Constitution, what it says कि ये इंडिया के हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि हमारा
जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, और हमारे तालाब हैं, नदियां हैं। इन सब को बचाना, इन सब की केयर करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये हम सब की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक्ट ये बोलता है। तो वेन यू आर गोइंग, यानी आप कहीं पर भी कुछ गलत देख रहे हैं इन्वायरमेंट के तहत, तो यू कैन do your work, or you can stop that, because this is your fundamental rights, that you should do not contaminate the, or do not pollute these uh, environments, regarding the forests, regarding the lakes, rivers, and the wildlife. Otherwise, this article will uh, catch you. So remember, we must be aware about our fundamental duties equally as we are about our fundamental rights. जैसे कि हम अपने फंडामेंटल्स यानी बेसिक जो राइट्स है उसके लिए हम लड़ते हैं, तो इसी तरह हमारे जो ड्यूटीज़ है, बेसिक जो ड्यूटीज़ है, जो फंडा बुनियादी जो जिम्मेदारी है एक सिटीजन की, वो बुनियादी जिम्मेदारी एक तो हमारे माहौल को साफ सुथरा रखना भी है, और दूसरा उसको पोल्यूशन से, उसको हार्मफुल चीज़ों से बचाना भी है। तो ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारा बुनियादी हक हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हम इन सब चीज़ों से हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ओके, इसी तरह द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आर्टिकल 48 ऑफ ए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। द स्टेट shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. तो 40 आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरह ध्यान दे के आपको इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को बचाना है, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको भी बचाना है, उनकी भी सेविंग है, उनका भी प्रोटेक्शन है। और यही हमारा आर्टिकल 48 ए है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 48 ए वाज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस वाइड 42nd अमेंडमेंट इन 1976। तो आर्टिकल 48 कब ऐड किया गया? आर्टिकल 48 ऐड किया गया 42वें अमेंडमेंट में, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्टिकल है, उसको बनाया गया कब? 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था, उसके अंदर। वो क्या बोलता है? टू एनेबल द इफेक्टिव स्टेप बीइंग टेकन फॉर द पर्पस बाय बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, wildlife and forests have now been placed in the concurrent list of the 7th schedule. Okay, so what is the Environmental Protection and Prevention Act? क्या है? The Environmental Protection Act 1986 में जो बना, उसमें क्या बोलते हैं? This is an umbrella overarching and a wider general legislation in India to protect our environment. Other rules and acts of environmental protection, that is biomedical waste management and handling rules 1998, recycled plastic manufacture and usage rules 1999, batteries, the management and handling rules for batteries 2001. So these are the rules and acts of environment protection which was
implemented, the year is also given and for uh, different materials and wastages. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना। हजार्डस वेस्ट जो है, जो कि डेंजरस और हार्मफुल वेस्ट जो है, उसके लिए जो एक्ट बना वो 2003 में अमेंडमेंट हुआ। 2003 में अमेंडमेंट हुआ। इसी तरह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बना 2010 में। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो वेस्टेज है उसके मैनेजमेंट के लिए रूल्स बने 2016 में। तो ये एक्ट और ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग उसको फॉलो करें। जो हार्मफुल मटेरियल है उसको कहीं पर डंप ना करें, किसी भी जगह ना फेंक दे, उसका सेपरेशन करें और एज पर द रूल्स और एक्ट यू शुड डंप योर वेस्टेजेस प्रॉपरली। तो बहुत सी जगह पर ये रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ लोग इसको नहीं फॉलो करते, उनको पेनाल्टी भी बैठती है। तो हमको एज ए सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये जो एक्ट है, जो कानून बने हुए हैं, जो रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करें और उसके हिसाब से ही हम हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम उसके ऊपर अमल करें और ये रूल्स के हिसाब से हम हमारे वेस्टेजेस को सेग्रीगेट करें और डंपिंग करें। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट, silent features of the act is uh, discussed here. This act deals with the criminal jurisdiction. Central government is most powerful. Environmental labs are established or authorized by the central government, state government, Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board. Standards are laid down by central government, state government. Stringent penalties and punishment is given to the industries and the people they are avoiding or breaking the rules and laws. Persons having highest authority is prosecuted. Hazardous wastes are defined and a special procedure is laid down. तो जो hazardous waste है, जो harmful है हमारे soil, land, water को, ऐसे एयर पोल्यूशन जो करते हैं, ऐसे वेस्टेजेस का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो बताया गया कि क्या है ऐसे वेस्टेजेस और उनको कहाँ पर डंप करना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, कहाँ पर कैसे प्रोसेस करना चाहिए। लोकस स्टैंड इज रिलैक्स, एनी पर्सन कैन फाइल अ केस। इसके अंदर आप कोई भी इन्वायरमेंटल एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं उसके ऊपर आप स्टैंड ले सकते हो, आप एक्ट कर सकते हो। This act is also applicable to the government department. This is an umbrella legislation। और ये जो एक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट, ये 1986 में बना और इसके अंदर ये सब खासियतें हैं, ये फीचर्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडिया। तो इसके अगर देखें तो ये एक साइकिल में काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के रीजनल ऑफिसर्स भी हैं स्टेट्स में। दे आर वर्किंग टुगेदर विद द स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज देयर, MPCB, एंड द रीजनल ऑफिसर्स दे आर वर्किंग टुगेदर। देन अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम NGOs बोलते हैं, जो नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पर काम करते हैं उनको NGOs बोलते हैं। जो कोई सोशल बेनिफिट और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दे आर NGOs। यूनिवर्सिटी, रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। तो ऐसे हमारे ये जो NGOs हैं ये काम करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन एक्ट के ताल्लुक से और प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट और कंटामिनेशन, अवॉइडिंग द कंटामिनेशन और इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द पोल्यूटेंट। इसी तरह
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड MPCB दैट इज महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो CPCB के ताल्लुक से अगर हम देखें तो स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि 1974 में इस्टेब्लिश हुआ। कब बना ये? 1974 में बना। इट इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी बड़ी है, ऊपर सबसे ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल की बहुत अहम और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है CPCB एज ए टेक्निकल विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बहुत अपेक्स बॉडी है, आप बोलेंगे ऊपर की बॉडी है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस, ऑल्सो रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट अमंग देम। तो कोई भी डिस्प्यूट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, CPCB और MPCB या स्टेट SPCB ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करते हैं और ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। CPC along with SPCBs are responsible for implementation of legislation relating to prevention and control of environment pollution in the states, conducts environmental assistance and research, also responsible for maintaining the national standard under a variety of environmental laws। तो ये सब CPCB के रूल्स हैं, इनके नॉर्म्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Advises the union territory of and industrial and other sources of water and air pollution. They are giving the advices for the prevention of pollution to the environment. Similarly, as per the state government in Maharashtra, the Maharashtra Pollution Control Board MPCB is there. The Maharashtra Pollution Control Board established 7 September in 1917 is celebrating its golden jubilee this year in 2020. It implements a range of environmental legislation in the state of Maharashtra. The Maharashtra Pollution Control Board, functioning under the administrative control of Environment Department of the Government of Maharashtra. The responsibility of the Maharashtra Government Pollution Control Board is to plan comprehensive program for the prevention, control or abatement of the pollution and secure execution of thereof। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो प्रोग्राम बनाते हैं, पहले तो जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, फिर कंट्रोल करने के लिए, और फिर किस तरह सही तरीके से हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका लाएअमल तैयार करते हैं। कौन? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Also to collect and disseminate information relating to pollution and prevention, control और abatement therefore। तो इसी तरह वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की और जो पोल्यूशन दूसरे देहातों में या सिटीज में होते हैं, और उसके कंट्रोल के लिए जो कि रूल्स है उसके ताल्लुक से दे आर चेकिंग। It is within the control limit they are, otherwise they are imposing the fines and implementing the laws। तो Maharashtra to inspect the sewage or trade effluent treatment and disposal facilities and to review plans specifications relating to the effluent treatment plants, sludge treatment plants, sewage treatment plants, disposal system, as the consent granted
जो काम करते हैं। इंस्पेक्ट द एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, रिव्यू प्लान करते हैं, स्पेसिफिकेशन उसके लिए लेट डाउन करते हैं, और उसके ताल्लुक से दे आर वर्किंग ऑन इट, सपोर्टिंग एंड इंकरेजिंग द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट रिसाइकल रीयूज, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इसके ताल्लुक से पब्लिक अवेयरनेस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया रोल ऑफ, अभी तक हम लोग ने देखा कि गवर्नमेंट का आर्टिकल्स से देखे हम लोग ने, फंडामेंटल राइट्स जो इस सिटीजन्स के हैं वो हमने देखा कि हर सिटीजन की जिम्मेदारी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पोल्यूशन से। आर्टिकल 51A देखे, उसमें 51 40 आर्टिकल 48 देखे होंगे जो कि डील करता है कंजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। नाउ वी हैव सीन आल्सो द रूल्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके देखे। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी जिम्मेदारी हम लोग ने देखे। और अभी जो एनजीओ जो वर्क करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं एनजीओ, they are also working in a non-profit or voluntary citizen groups which is organized in a local, national or international level। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमारे गांव में भी हैं, हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, इसी तरह इंडिया में है और वर्ल्ड वाइड भी है, जो कि ना फायदा ना नुकसान ये टर्म्स के ऊपर काम करते हैं। और ये जहाँ पर भी कुछ उनको ऐसे चीज़ें मिलती है जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है वो नोटिस करते हैं और गवर्नमेंट को उसकी आगाही करते हैं, और कुछ अगर उनसे काम हो सकता है तो वो खुद एक्ट करते हैं। सोशल वॉलंटियर जो सिटीज़न है जो कि सोशल वर्क करते हैं वो ये सब काम में आगे आते हैं। इनसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रिलेशन नहीं होता है, वे खुद आगे बढ़कर काम करते हैं और इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। The NGOs constitute a worldwide network interacting with government, intergovernmental organization in shaping the nation international environmental policies। तो पॉलिसीज जो बनती है ये फील्ड में काम करते हैं, इनके पास डाटा होता है और कुछ गवर्नमेंट के डाटा होते हैं। जब भी कोई पॉलिसीज बनती है तो गवर्नमेंट इनको भी अपने साथ जम करती है, इनको भी इनवाइट करती है और फिर बैठकर कोई भी कानून या पॉलिसी या एक्ट बनाया जाता है। अब रोल ऑफ एनजीओ क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम देखेंगे। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक ऑन करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम वो करते हैं कि जो भी पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने का काम करते हैं, जो भी करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। NGOs facilitating the participation of various categories of stakeholders in the discussion on the environmental issue। मीटिंग्स बुलाते हैं, वो और कंपनीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके यूनिट से ऐसा हो रहा है, आप इसको स्टॉप कीजिए या इसको प्रोसेस करके आप यानी डिस्पोज कीजिए। इसी तरह रूरल एरियाज में पार्टिसिपेटरी कंडक्टिंग, कुछ नाटक करते हैं, कुछ प्रोग्राम रखते हैं या कुछ अवार्ड्स रखते हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए। Being involved in the protection of human rights to have a clean environment, इसके ऊपर भी काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम करते हैं, इन्वायरमेंट के ताल्लुक से क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, क्लीन फूड प्रोवाइड करने के लिए, हाइजेनिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज
जैसे कि हमारे तालाब हैं, है ना, पॉन्ड्स हैं, हमारे रिवर्स हैं, लेक हैं, समुद्र है, जहाँ से हमको पानी और नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, फॉरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। डाटा जनरेशन और नेचुरल रिसोर्सेज टाइम लाइन हिस्ट्री ऑफ विलेजेस, डाटा रिकॉर्ड करते हैं रेगुलरली और उसकी हिस्ट्री उनको टाइम के हिसाब से मालूम होती है। एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़लेटर, ब्रोचर, आर्टिकल, ऑडियो विजुअल एड्स, है ना, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, न्यूज़लेटर और ब्रोचर्स बनाते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों के अंदर। ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार है, लेक्चर है, ग्रुप डिस्कशन है। इसी तरह दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सब एनजीओस के रोल्स हैं। और मोस्टली ये रूरल एरियाज में ज़्यादा काम करते हैं, अर्बन एरियाज में भी काम करते हैं। और इनके इनकी वजह से बहुत से जो हमारे जहाँ पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ती है, वहाँ पर ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है क्लीन होता है। कुछ एनजीओस की लिस्ट है ये जो काम करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन सीईई, सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल सीएससी, सीपीआर इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, कल्पवृक्ष, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसी तरह प्रोमिनेंट एनजीओ ऑपरेटिंग इन नागपुर में कुछ एनजीओ जो काम करते हैं वो है ग्रीन विल, आई क्लीन, ये एक्सेट्रा। इसी तरह और दूसरे रीजन में जो काम करते हैं वो एनजीओस भी आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, उनके साथ ज्वाइन होकर आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम जनरली आज जो दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बार बार सुनते होंगे, तो क्या सस्टेनेबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है सस्टेनेबिलिटी के, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट क्या है ये भी हम देखेंगे, और रूल ऑफ EIA इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये हम देखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट is need for the development, environmental protection, economic development of the country, social aspect and role of EIA. So what is sustainability? Sustainability could be defined as an ability or capacity of something to be maintained to sustain itself. सस्टेनेबिलिटी किसको बोलते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग टू मेंटेन और सस्टेन स्टिल। अभी हम जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैं अगर एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊं कि हम ऐसा मटेरियल यूज करें इसका हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो, जो कि रिसाइकलेबल हो, रीयूजेबल हो, रिक्रिएटेबल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कोयला है, कोयला हम बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उससे बर्निंग से हमको क्या मिलता है, बर्निंग से हमको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी और ऐशेस मिलते हैं, फ्लाई ऐश जिसको हम राख बोलते हैं। और फिर वो राख से हम सीमेंट बनाते हैं या ब्लॉक बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो वेस्टेज निकला है, ये जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग ने एक बार यूज किया उससे जो प्रोडक्ट मिला उसको भी हम यूजेबल करते हैं, तो उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फ्लाई ऐश है, स्लैग है, सिलिका फ्यूम है, राइस हैश का हैश है, ऐसे डिफरेंट मटेरियल जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं।
ऐसे वेस्ट जो यूजेबल है उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी यानी ऐसा मटेरियल यूज करना कि वो खुद सस्टेनेबल हो, उसकी कैपेसिटी हो कि वो लॉन्ग लाइफ रहे, उसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर। इट इज अबाउट कंज्यूमिंग जस्ट व्हाट वी नीड टू लिव नाउ while leaving enough for people in the future to meet their social, economical and environmental needs। यानी आगे फ्यूचर में भी जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनको ऊपर भी इसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उनके सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल जो नीड्स है आज के दौर में भी और आगे भी उसका उसका प्रॉब्लम ना हो। दैट इज नथिंग बट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, यानी करंट में जो हमको नीड्स है वो फुलफिल होती है without compromising the ability of the future generation to meet their own need। यानी कि आने वाले मुस्तकबिल में इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो हमारी नीड आज की फुलफिल हो रही है लेकिन आगे के लिए हमारे इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट उसका नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। है ना? फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसके आगे जो आने वाली है उनको कोई इससे हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ताल्लुक से हमने बहुत चीज़ें पढ़े, जैसे सोलार एनर्जी हम लोग ने पढ़े, विंड एनर्जी हम लोग ने पढ़े, है ना, ओशियन एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से डेवलप करके विदाउट बर्निंग कोल, विदाउट यूजिंग पेट्रोलियम। तो ऐसी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हम कोई चीज़ बर्न करके बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर रिलीज हो रही है कि वो रिसाइकलेबल ना हो और रिक्रिएट ना हो तो फिर ये हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करें जिससे एनर्जी तो पैदा हो लेकिन वो इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल इफेक्ट ना करे, तो इसके ताल्लुक से हम ज़्यादातर पढ़ते हैं जियो थर्मल एनर्जी हम लोग ने पढ़े, विंड पावर, विंड एनर्जी पढ़े, हाइड्रो पावर, पानी से बिजली, ओशियन वेव से बिजली तैयार करना, ये हम लोग ने पढ़े, है ना। तो इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जनरेट रिसोर्सेज विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करना जो एनवायरनमेंट का पर इम्पैक्ट नहीं करे, जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया, है ना, पानी गर्म करना है तो सोलर एनर्जी यूज करें कुकर की बजाय, कुकिंग गैस इस्तेमाल करने के बजाय। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्ट विदाउट द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और फ्यूचर। जैसे हम लोग माइनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कोल की माइनिंग हो गई, मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारा बढ़ता है टाइमिंग, लेकिन आगे के लिए हमको सोचना है। इसी तरह मेंटेन बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट, दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना, ये क्या किस में आता है? ये सब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बैलेंस बिटवीन थ्री एस्पेक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट है? पहला तो इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंट है और सोशल एस्पेक्ट। ये तीनों को अगर बैलेंस करके हम चलते हैं तो इसको हम, अगर ये पोर्शन आप देख रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट सस्टेनेबिलिटी। तो ये तीनों को हम ये पार्ट में आप देखेंगे कि हम बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो इट इज, आपको यहाँ पर और वाज़ेह तरीके से बताता हूँ। ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ट्रायंगुलर पार्ट जो बन रहा है तीन सर्कल से, दैट इज इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और सोसाइटी।
सोशल, तीनों को मिल के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट सस्टेनेबिलिटी। सिर्फ इकोनॉमिक को देखकर हम आगे बढ़े, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को भूल जाए, तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना। इस तरह सिर्फ सोसाइटी को देखे और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट को भूल जाए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी के लिए तीनों का जरूरी है, तीनों चीजों, तीनों एस्पेक्ट को देखना जरूरी है। Sustainable development is all about creating equal opportunity for all members to ensure a strong and healthy society. Sustainable development also focuses on finding better ways of doing things without affecting the quality of our life. So these all are nothing but the sustainable development. Now the three components here for sustainable development, that is the economic growth, that is profit, environmental growth, the planet, social inclusion, that is related to the people. All three things are necessary for the sustainable development. So you should take care of all these three. Then only you can say that you are doing a sustainable development. Now, environmental aspect is the natural resources uses. For example, मिनिमल रिसोर्सेस है, जैसे कोल माइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम माइनिंग करते हैं, एक्सेट्रा। फॉसिल फ्यूल है, कंजप्शन है, फॉरेस्ट है, रिवर है, बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। दीज आर कमिंग इनटू द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। इसमें आते हैं हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में ही आते हैं। दिस इज द इन्वायरमेंटल। अवॉइडिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज सिस्टम, environmental management, solid waste management, hazardous waste management, conservation of biodiversity, यानी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ को बचाना, वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है। पढ़ चुके हम सब। एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी हम लोग पढ़ चुके। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये सब पढ़ चुके हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, pollution control, air, water, land, noise, pollution control, etc. They are coming into the environmental aspect. Concentration of NOx, SOx, nitrogen oxide, sulfur oxide, excess nutrients in water bodies, change in land use and land cover. All this will come in the environmental aspect. So sustainable development, also economic aspects are the profits you need for living, your earnings, cost of savings, economic growth of your own, your country, research and development work, new methods or new techniques are developed, cost and underemployment is also coming in the economic aspect of the country, job growth of the nation, and renew gross uh, renew contribution, that is GDP and GNP, etc. So what are the other than economic and environment aspects? Social aspects are also very important. Standard of living of the peoples, standards of living of the peoples, education of the community and the peoples, employment for the citizens. These all are the social aspect. Equal opportunity, social justice by equitable resource allocation for all human beings, social service such as education, health, etc. for all the members of society, especially the most needy one, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए। जेंडर इक्वलिटी, यानी मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स, सबके लिए। दिस विल आल्सो कवर द सोशल एस्पेक्ट। रिलेटिव पॉवर्टी, गुर्बत की जो सतह है उसको कम करना, उसके ताल्लुक से काम करना, दिस आर आल्सो कमिंग इन द। बहुत से आज भी हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी यानी 2 वक्त का खाना, अनाज भी नसीब नहीं होता। तो उसके ताल्लुक से भी हम सोचें तो दीज आर कमिंग इनटू द सोशल एस्पेक्ट। उसमें भी बहुत से NGOs काम करते हैं।
और आज के दौर में आपको मालूम है कि बहुत से चाइल्ड सेव चाइल्ड बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी काम कर रही है ना। रेड क्रॉस है और दूसरे ऐसे एनजीओ है जो इसके ऊपर काम करते हैं। वायलेंट क्राइम्स पर कैपिटा, health adjusted life expectancy, etc. All this coming into the social aspect of your uh, sustainable development. Okay. Role of environmental impact assessment, that is EIA. What is environmental impact assessment? Environmental impact assessment or EIA, environmental impact assessment, that is EI, can be defined as the study to predict the effect of proposed activity project on the environment. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी, आप जो भी बोले, वो कोई भी प्रोजेक्ट है या एक्टिविटी है उसके ताल्लुक से उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, उसकी स्टडी करते हैं। तो दैट इज नथिंग बट EIA। तो EIA इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग टूल। EIA compares various alternatives for a project and seeks to identify the one which is represent the best combination of economic, environmental cost and benefit। तो EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो स्टडी करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट हो, और उसके अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं कि जिनका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट दोनों हो, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। दैट इज द EIA, दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इनके रोल क्या है? If sustainability is viewed as a product, EIA can be seen as a measuring tool to evaluate its usefulness and disadvantage and shortcomings। तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, इस पे काम करने के लिए EIA इज नथिंग बट अ measuring tool जो कि असेसमेंट करता है। If sustainability is an objective, EIA could be one important milestone across the route of fulfill the objective। है ना, सस्टेनेबिलिटी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसको EIA इज द माइलस्टोन प्रोसेस दैट EIA, environmental impact assessment, ensure that any development meets the needs of present without compromising an ability of future generation to meet their own needs। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बराबर अमल करते हैं। दैट इज नथिंग बट द EIA, environmental impact assessment। So EIA processes can be viewed as an endeavor to answer the basic question whether the identified impact will be positive, negative or uncertain। तो उनके असेसमेंट से हमको मालूम पड़ता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक्टिविटी, वट एवर भी गोइंग ऑन, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या ये अनसर्टेन होगा। ये सब वो असेस करकर हमको बताते हैं। एंड दैट इज नथिंग बट द environmental impact assessment, that is a tool to assess the environmental impact, economic impact, benefits of any project। And one thing this quote is very important, that prevention is better than cure। ये अगर हम प्रिवेंट अपने आप को करते हैं तो प्रिवेंशन बेटर है कि बाद में हम उसका मरहम तलाश करें। जख्म लगने से बचना अपने आप को बेहतर है, ना कि जख्म को मरहम लगाना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। यानी कोई भी चीज से, एक्सीडेंट से बचना ये बेहतर है, नहीं कि एक्सीडेंट होने के बाद हम उसको को क्यूर करें। तो इसके लिए इन्वायरमेंट को खराब करना, पोल्यूट करना, पोल्यूट करने से बेहतर ये है कि
पोल्यूशन से हम रोका जाए, ना कि पोल्यूट करने के बाद उसका हल ढूंढे, ये पोल्यूशन को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या उसका उसका क्या कर सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी ला के उसको दैट पोल्यूटेड थिंग्स को हम अच्छे यूजेबल थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है ये है कि प्रिवेंट किया जाए पोल्यूशन को, है ना, एक्सप्लॉयटेशन को, ओवर पॉपुलेशन को। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आज हम प्रिवेंट करते हैं तो आगे के लिए हमारे लिए फायदे है। तो दैट इज द कोड, एंड दिस कोड इज वेरी very good, and it is applicable to all of us also. When an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationship are not fully established scientifically. तो ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो आज आज हम लोग ने जो पढ़ा, एक तो सस्टेनेबिलिटी के ताल्लुक से देखा, दूसरा आज हम लोग ने पहले सेशन में देखा कि रोल ऑफ एनजीओस क्या है, रोल ऑफ महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड क्या है, रोल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल गवर्नमेंट पोल्यूशन एक्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स क्या है, रूल्स क्या है, वो देखे हम लोग ने। और फिर उसके बाद हम लोग, उससे पहले हम लोग ने देखे कि क्या है हमारा फंडामेंटल राइट्स। और once again I will read our fundamental right. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creations. This is the article of 51A of the Constitution of India. So this is article, and this is our fundamental right to protect। क्या प्रोटेक्शन करना है? हमारे पॉन्ड है, हमारे रिवर है, और हमारे जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगलात हैं, एनिमल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है। ऑल दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू आवर फंडामेंटल राइट्स, एंड दैट इज द एक्ट, दैट इज 48A and 51A of the government of India. So this is all about the today's lecture. If you have any doubt about the lecture, anything you have to ask, you can ask. Otherwise, we will stop here. अटेंडेंस कभी कम कभी ज़्यादा होते रहती है। अटेंडेंस क्यों नहीं रहती समझ में नहीं आता आप लोगों की। तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं है? मैंने आपको कुछ मैक्रो प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए, सिर्फ एक बच्चे ने भेजा है अभी तक मुझको। आप लोगों का जिनका बाकी है वो आज शाम तक भेज दें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं लिंक दूंगा। वो लिंक में आपको अपलोड करना रहेगा उसका फोटोग्राफ जो आपने माइक्रो प्रोजेक्ट बनाया है, और वो 10 मार्क्स में से फिर आपका असेसमेंट होगा, जैसे प्रोग्रेसिव असेसमेंट होता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप जल्द अज जल्द माइक्रो प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाया है, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, कोई भी फॉर्म में हो, प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन आप भेज दीजिए मुझको, आपके रोल नंबर और नाम के डिटेल के साथ। ओके, थैंक यू फॉर। बुक में से कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं? जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके नियर बाय वहाँ विजिट कर सकते हैं। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, बायोमेडिकल वेस्ट का अगर कहीं पर होता है, आप अगर विजिट करते हैं तो उसके ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हैं, या केस स्टडी इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके ऊपर अपने कमेंट डालकर आप केस स्टडी भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम आप एक करके मैं सबमिट कीजिए,
ताकि आपका जो आगे असेसमेंट है, आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ये हो जाए तो अच्छा है। आज कल में आप लोग करके भेजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा, लिंक अगर हो गई तो लिंक मैं डालूंगा, उसमें आप अपना फ़ोटो अपलोड कर दो। अगर आप व्हाट्सअप भी किए तो मुझको पर्सनल पे व्हाट्सअप आपके रोल नंबर और नाम के साथ आप कर सकते हैं, मैं बाद में जब असेसमेंट करूँगा तो उसमें देख लूँगा। ठीक है, यू कैन डू एनी ऑफ द वे। अभी तो कॉलेज आना नहीं है जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता।